बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहेंगे, कहने दीजिए उसको, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको अपना मिशन रहे कि आपको अंग्रेजी बोलनी है तो आपको बोलनी है। फिर दृढ़ निश्चय, मतलब कमिट कर दीजिए, एकदम रिलीजियसली कमिट कर दीजिए कि मुझे सीखनी है 12 महीने में, 1 साल में, 1.5 साल में। Hello, sir. Thank you so much for joining me today. It's an honor for me to have you on my YouTube channel. Thank you so much for giving your time. Pleasure is mine, Upasna. Thank you very much for inviting me on this channel of yours. And I have been following your channel for long, and your journey itself is exciting and inspiring for many. And you are doing a great job by changing lives of many students who otherwise feel that there is little scope if they don't know English or they don't have good communication skills. And you are hitting the right nerve of majority of the students coming from Hindi belt especially, or non-English belt. So thank you very much for inviting me on your channel. Thank you so much, sir, for your kind words. It really means a lot to me. So, sir, your journey inspires me a lot. आप एक बहुत छोटे से विलेज से बिलोंग करते हो एंड देन यू रीच टू आईआईटी, देन यू वेंट टू आईआईएम, फिर उसके बाद आपने खुद की कंपनीज स्टार्ट की, यू हैव रिटन बुक्स और आपने 100+ स्पीचेस दी हैं. तो योर स्टोरी इज अ काइंड ऑफ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ सक्सेसफुल पर्सन. तो सर आज मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगी जिनको जानने के लिए, जिनसे मैं बहुत कुछ सीख सकती हूँ और जो हमारे लर्नर्स हैं वो आपकी जर्नी से बहुत कुछ सीख सकते हैं. तो सर पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. कुड यू प्लीज टॉक अबाउट योर अर्ली डेज? Early days started in village. As I mentioned, I come from a village which is 50 kilometers away from city of Udaipur in Rajasthan. So I was born and brought up in that village. I was born to a teacher, it's an English teacher. So that was one of the blessings for me. And that helped me, cover a lot of my English challenges and early stages. But as I moved ahead, I found lot of new challenges, and I overcame those by working hard on that, seeking feedback from peers. But I'll tell you more about that. My father wanted me, or all of us, we were 5 brothers and one younger sister, all of us to become highly educated and get into, especially in the civil services side. And he had a rigor for getting this done. He had big dreams for us, and he started sending each of us, despite his limited resources, to city. And so when I was the youngest of all brothers, and when most of my elder brothers had gone to city of Udaipur for pursuing studies in different schools, so I was also sent when I was in class third. So that was my early story. I started my journey for first and second class. I didn't study nursery and KG and play. That time, we never had those concepts in government schools. So that's how I started my early days. ओके, सो दैट्स रियली इंटरेस्टिंग थिंग कि आपकी फैमिली आपको स्टार्टिंग से ही काफी सपोर्ट कर रही थी स्टडी को लेके. क्योंकि अगर हम एक विलेज की बात करें तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो एजुकेशन को इतना ज्यादा महत्व नहीं देते हैं, पर इट वाज अ गुड थिंग फॉर यू कि आपकी फैमिली आपको स्टार्टिंग से ही काफी सपोर्ट कर रही थी. तो सर इफ वी टॉक अबाउट, या प्लीज कंटिन्यू. ये बात सही है. ये बात सही है क्योंकि मेरे पिताजी खुद एक शिक्षक थे और रिटायर हुए हैं वो 2003 में. तो उनके मन में था कि पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, लेकिन चैलेंजेस सबके साथ थे. उनके साथ में उस टाइम शिक्षक की तनख्वाह जो है बहुत ज़्यादा हुआ नहीं करती थी, और हम फैमिली इतनी बड़ी थी. तो वो बड़ी बात है कि उन सब कम रिसोर्सेज के बावजूद भी उन्होंने एक बड़ा सपना देखा और कोशिश की कि कुछ अलग किया जाए. तो ये मेरे लिए एक बहुत जिंदगी में बहुत 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 बड़ी चीज थी. That's true. So sir, total how many members were there in your family? So 5 brothers, 1 sister, 2 father, mother, and then grandparents. Okay. Early stage पर they when I was young, both of them had gone, my grandparents. But then 8 to 12 members, you can say.
ओके। तो सर आप एक 12 मेंबर्स की फैमिली में थे, तो उस टाइम पर आपको एक खुद का रूम पर्सनल मिल जाता था जहां पर आप पढ़ाई कर सकते हो, या फिर मतलब किस तरीके का एटमॉस्फेयर था घर पर? ये तुमने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। हमारे घर में एक अकेला रूम पढ़ाई करने के लिए, आई थिंक ये तो सपना जैसा था। ऐसा कोई चीज नहीं थी कि अलग रूम मिले, मतलब मेरे ख्याल से एक रूम ही था जिसमें हम सब रहते थे। और ओके। बाद में जब या छोटे छोटे दो रूम थे, वहां हम रहते थे। और ऐसी परिस्थिति भी आई जब एक छोटा सा 18 बाई 20 का कमरा था जिसमें कुछ समय के लिए हम रहे। और वो उसमें हम 8-10 लोग रहते भी थे, और साथ में गाय भैंस जो हमारा पशुधन था वो भी उसी में रहता था। तो एक हम्म। वो कुछ एक छोटा सा पीरियड ऐसा रहा पारिवारिक पृष्ठभूमि की वजह से, परिस्थितियों की वजह से, कि हमें वो दिन भी देखने पड़े। लेकिन वो बड़ा न भुलाए जा सकने वाला पल, अंतराल था। पर ऐसा नहीं था। उसके बाद जब हम उदयपुर पहुंचे तो वहां हमारे पास दो कमरे थे, लेकिन क्योंकि हम 8 मेंबर थे तो वो दो ही कमरों में सब कुछ हो। किचन भी उन्हीं दो कमरों में थी और उन्हीं दो कमरों में रहना होता था। तो 8 मेंबर थे तो समझ सकते हैं, और कभी कोई मेहमान आते भी थे तो सब लोग हम वहीं रहते थे। तो ऐसा सेपरेट कमरा नहीं था। लेकिन हम क्या करता था मैं कि कभी छत पे चला गया, या वहाँ हमारे उदयपुर में पार्क हुआ करता था, हम्म। गुलाब, वहां चले गए, पार्क में बैठ के पढ़ लिया। तो हम्म। ये इस तरह के जगह ढूंढ ली जाती थी। या फिर इससे बचने के लिए मैं एक दूसरा उपाय मैंने ढूंढा था कि हम्म। मैं जब सब सो जाते थे तब मैं उठता था और तब मैं पढ़ता था। तो रात को 10 बजे के आसपास मैं उठता था जब सब सो जाते थे। 10:30 से लगाकर सुबह 6 साढ़े 6 बजे तक मैं पढ़ाई करता था। ये मेरा 8वीं 9वीं के बाद का शेड्यूल कुछ ऐसा था। अच्छा अच्छा। तो सर आप हमेशा से ही पढ़ाई में अच्छे थे, या फिर मतलब किस तरीके से आपका पढ़ाई में जो इंटरेस्ट था वो किस तरीके से आपका जागृत हुआ? पढ़ाई में इंटरेस्ट, मैं ठीक था पढ़ाई में। और पढ़ाई में ठीक था, मैथ्स अच्छी थी, रुचि थी पढ़ने की। और हम्म। क्योंकि परिस्थितियां कुछ ऐसी थी तो हमारे पास बहुत ज्यादा चॉइस नहीं थी। आज बच्चों के पास बहुत चॉइस होती है, तो सब कुछ मिल जाता है, दिख जाता है। उनको ये इम्पोर्टेंस महसूस नहीं होती कि हम क्या करें। रिसोर्सेज का जब प्लेंटी हो जाती है तो फिर दिक्कत होती है। लेकिन उस समय हम्म। हमारे पास ज्यादा चॉइसेस नहीं थी कि अगर नहीं पढ़ेंगे ओके। तो खेती करेंगे, या कहीं किसी दुकान पे जाके काम करेंगे, ग्रोसरी स्टोर पर या हम्म। किसी सोने चांदी की दुकान पर। यही बहुत बड़े बिजनेस हुए तो यही काम कर सकते थे। और पढ़ लिया तो हमें ये दिखता था कि कुछ टीचर्स बनते हैं, कुछ ऑफिसर्स बनते हैं, प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, या हम्म। अकाउंटेंट बनते हैं। तो एक दो चॉइसेस थी। इंजीनियरिंग बनने का भी पता चला कि इंजीनियर भी बन सकते हैं। तो जैसे जैसे आगे हम्म। बढ़ते गए, जब मैथमेटिक्स ठीक थी और उसके रिजल्ट भी अच्छे आने लगे, तो लगा कि हम इंजीनियर बन सकते हैं। ये एहसास मुझे 10th के बाद हुआ कि ओके। आईआईटी नाम 10th की के बाद। संस्था भी होती है और वहां भी जाना चाहिए। तो 11th में मेरे कुछ मित्र कह रहे थे कि हम कोटा जाएंगे कोचिंग करने के लिए। हम्म। तो पता नहीं था कोटा क्यों जाते हैं लोग। जब हम्म। पता किया, थोड़ा और पूछा कि वहां पर कोचिंग होती है आईआईटी को, और आईआईटी एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट एग्जाम होता है। तो मेरे मन में ये आया कि अगर कोई डिफिकल्ट एग्जाम है तो वो मैं अवश्य अपेयर होऊंगा। और अगर उसको अपेयर होने के बाद पास हो जाते हैं तो बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन होता है। तो ये एक हम्म। एक मन में था, पता नहीं कैसा था क्या नहीं था, लेकिन ये मन में था। तो इस तरह से मेरा एक डेवलप हुआ। गांव से जब शहर में आए, गांव में मैं हाँ। जनरल फर्स्ट आता था क्लास में, पहली दूसरी थी वो। हम्म। लेकिन जब हम्म। शहर में गया तो मैं तीसरे चौथे पांचवें स्थान पर चला गया। उसका कारण दैट्स ये ट्रू। था कि गांव का, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं ही सबसे होशियार हूँ गांव। हम्म। यार मैं तो सबसे होशियार हूँ, मुझे कुछ क्या करना है। तो वो एक कंफ्यूजन दूर हुआ जब शहर में गए और हमेशा तीसरे चौथे नंबर पर आने लगा। तो मुझे लगा कि नहीं, अभी इसमें और मेहनत करने की आवश्यकता है और रिगल लाने की आवश्यकता है। और कुछ ऐसी परिस्थितियां भी आई जब एक आध बार फेल हो गया था छोटे से हम्म। टेस्ट में। तो पापा से बहुत डांट पड़ी थी और बहुत कुछ सुनने को मिला था। तो उसके बाद तय किया कि नहीं, इसको कंप्रोमाइज नहीं करना है पढ़ाई पे, और लगातार इसको अपना ध्येय बनाना है, और इन परिस्थितियों से, जिन परिस्थितियों में, जिन हालातों में हम हम्म। रहे, बाहर निकलना है। एक ये बड़ा मोटिवेशन हमारे लिए हमेशा था। तो सर जब नॉर्मली एक विलेजर एक स्मॉल विलेज से जब एक बिग सिटी में जाता है, और जब वो बहुत सारे चैलेंजेस फेस करता है, तो उसका जो कॉन्फिडेंस होता है वो डाउन हो जाता है। जैसे कि
अगर मैं आपकी जगह होती, अगर मैं एक बिग सिटी में गई होती और मेरे सामने इतने सारे चैलेंजेस होते, तो शायद मैंने सब कुछ छोड़ के वापस अपने गांव आ गई होती। तो व्हाट केप्ट यू गोइंग दैट टाइम? मतलब किस तरीके से आपने उन सारे चैलेंजेस का सामना करने का ठाना? ये बात सही है आपकी, बिल्कुल सही है। और अधिकतर केस में ऐसा होता है कि एक एक व्यक्ति कुछ करना चाहता है या बच्चा कुछ करना चाहता है, और साथ में चार लोग ऐसे हैं जो उसकी कुछ कमियों को लेके इंसल्ट करेंगे या मजाक उड़ाएंगे, हम्म। या वो खुद ही देख के डिमोटिवेट होगा कि यार मुझे तो कुछ आता राइट। नहीं है, मैं क्या करूं, मैं कैसे सरवाइव करूंगा करूंगी। और उसके मन में आत्मग्लानि आने लग जाती है, और कहीं न कहीं कुंठाएं जन्म लेने लगती है। मेरे लिए महत्वपूर्ण चीज ये थी कि मैं पढ़ाई को कम्प्रोमाइज नहीं किया, और मुझे लगा कि जैसा मैं हूँ, जैसा मैं दिखता हूँ, या जैसा मैं हम्म। पढ़ता हूँ, मुझे अपने इसी फोकस पे चलते रहना है। और इन सब हम्म। चीजों पे ध्यान नहीं देना है जो साइड के कमेंट हैं या ऐसी चीजें हैं। और लगातार अपनी कमजोरियों को आइडेंटिफाई करते हुए आगे बढ़ते जाना। मेरे मैं जब छोटा था तो मेरी मैं बहुत दुबला पतला था, तो अक्सर मेरे इस हाँ। दुबलेपन का लोग मजाक उड़ाते थे। कभी हैंगर बोलते थे, कभी कुछ बोलते थे, पापड़ बोलते थे, हम्म। पापड़ पहलवान बोलते थे। और ये कभी किसी जानवर से संबोधित करते थे, छोटे पतले जो पेड़ों पे चढ़ जाते हैं, तो ऐसे हम्म। गिरगिट गिरगिट ऐसा। तो ये मुझे आज भी याद है। तो लेकिन ये था कि हाँ, वो सुनता था, बुरा भी लगता था, लेकिन मेरे लिए कहीं ना कहीं उन्हीं को मैंने अपना अलग स्ट्रेंथ अलग, अलग समझो। मिशन बनाया। उसको ये हाँ। सोच कि मैंने एक अकबर बिरबल की एक छोटी सी कहानी आती थी, उसने बड़ा मेरे पे प्रभाव डाला, और वो हमेशा मुझे याद रहती है। हम्म। उसमें कहीं हम्म। उदाहरण होता है कि एक बड़ी लाइन, एक एक लाइन खींची अकबर ने, और कहा बिरबल से कि इसको छोटी करके दिखाओ। तो बिरबल हम्म। ने एक बड़ी लाइन उसके पास खींच दी और बोला कि महाराज ये छोटी हो गई। तो बिना दूसरी लाइन को काटे और बिना उसको हम्म। डिस्टर्ब, अपनी लाइन बड़ी खड़ी कर देने से मात्र आपका वो हम्म। समाधान हो सकता है। तो मुझे लगा कि राइट। इसका जवाब दो हो सकता है, या तो मैं उनसे भिड़ूं और उन्हें वापस जवाब दूं, तो वो वापस जवाब देंगे, इस तरह से ये एस्केलेट होता रहेगा। और दैट्स रियली अ वंडरफुल स्टोरी सीरियसली। मैंने उसी को अपना आधार बनाया जीवन का, कि मैं जहां पर भी कहीं मेरे हम्म। साथ ऐसा ऐसा होगा, कोई एक लाइन खड़ी करने की कोशिश करेगा, तो मैं अपनी कोशिश करूंगा कि मैं उसके पैरेलल एक अपनी बड़ी लाइन खींचूंगा, जो उससे बड़ी होगी, और इतनी बड़ी होगी कि शायद सामने वाला फिर दूसरी लाइन खींचने की हिम्मत ना कर सके। तो मेरे लिए ये ये हमेशा सबसे बेस्ट सजेशन है। हम्म। तो सर आप जब कोटा गए थे तो आप 2 साल, मतलब आपने कोटा में 2 साल अपने स्पेंड किए। फर्स्ट ईयर में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था आईआईटी में। तो जी। सेकेंड ईयर की अगर हम बात करें तो उस टाइम पर व्हाट डिड यू थिंक दैट टाइम कि 1 साल और करने से आपको कहीं ना कहीं ये डर नहीं था कि योर योर फादर इज मैनेजिंग योर फाइनेंसेस, और अगर इस साल भी नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? मतलब हाउ श्योर यू वर कि हो जाएगा? मेरी मेरी चर्चा हुई थी पापा से। मेरा एक दो तरह के एग्जाम दिए थे उस समय। एक स्टेट लेवल का एग्जाम हुआ करता था, पीईटी, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट। हम्म। उसके जो स्टेट ओके। लेवल के इंस्टीट्यूट थे, कॉलेजेस थे, उसमें एडमिशन हो जाता मेरा। तो मेरी उसमें रैंक आ गई थी और मेरे को ठीक ठाक लेवल का मिल जाता। हम्म। आईआईटी का और रुड़की एंट्रेंस एग्जामिनेशन के दोनों के एग्जाम में मेरा प्री क्वालिफाई हो गया था, लेकिन मेंस नहीं हो पाया ओके। था। कुछ हम्म। नंबर से कमी रह गई थी। तो मुझे ये यकीन था, मेरे पास चॉइस थी कि मैं अभी इसी में ले लूं एडमिशन, और एक बार को कर लूं। मुझे उदयपुर में ही कॉलेज में एडमिशन मिल जाता उस रैंक पे। अच्छा। ओके। लेकिन मेरे मन में था कि ये मैं मुझे अपने आप पे भरोसा था कि मैं अगर एक मौका हम्म। और देता हूँ और जो कमियां रह गई है उसको पूरी कर सकता हूँ, तो मुझे सफलता अवश्य मिलेगी। और मुझे, मेरे पिताजी को भी मुझ पे भरोसा था, और उन्होंने, मैंने जब कहा हम्म। कि क्या करना चाहिए, तो मैंने कहा मैं एक बार वापस अटेम्प्ट देना चाहता हूं, अगर आप और हिम्मत कर सकते हैं तो। क्योंकि हाँ। उस समय 30,000 रुपए पहले साल की फीस थी, और लगभग 25-30 हजार रुपए खाने पीने का खर्चा था साल भर का। तो वो उस समय बड़ी रकम थी वो। तो उन्होंने दैट्स ट्रू। उन्होंने वो बोला कि इसकी चिंता मत करो, वो मैं लाऊंगा, और हम्म। तुम जाओ। तो वो वहां से डिसीजन हो गया, और फिर मैं दूसरे अटेम्प्ट के लिए चला गया। और फिर तो सर हम्म जी। तो सर जब आप आईआईटी पहुंचे तो वहां पर आपने किस तरीके के चैलेंजेस फेस किए? क्योंकि एक गांव से सिटी में आना दैट इज अ चैलेंजिंग थिंग, पर एक सिटी से फिर आप आईआईटी तक पहुंचना दैट्स लाइक ड्रीम। तो उस टाइम पर आपकी लाइफ कैसी थी? किस तरीके के आपने चैलेंजेस फेस किए?
वहाँ दो दो चीजें हुई। पहला, जब हम्म। मैं गांव से शहर में आया तो मेरा पहला कंफ्यूजन जो भ्रम था अपने बारे में कि मैं सबसे हाँ। होशियार हूँ, टूटा। और जब हम्म। मैं वहां से और आगे गया और जब मुझे ये हम्म। लगा आईआईटी क्लियर कर ली, तो मेरे मन में एक छोटा मोटा अभिमान आ गया कि यार वो तो अब तो आईआईटी कर ली है, हाँ। अब मुझे किस चीज की चिंता है, अब तो ऑटोमेटिकली आईआईटी सब कुछ कर लेगा। ये मेरी गलती थी और ये इसको मुझे रियलाइज किया मैंने बाद में। तो मैंने पढ़ाई में थोड़ा हम्म। ध्यान कम कर दिया था अपने आईआईटी के समय में। उतना ही पढ़ता था जितना पास होने के लिए जरूरी था, और हम्म। पास हो ही जाते थे सब, तो फेल नहीं हुआ कभी। लेकिन थोड़ी मुझे लगता है कि थोड़ी और अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए थी। दूसरा, मुझे हम्म। ऐसा ये हुआ कि जो कम्युनिकेशन स्किल्स मेरी अब तक मैं समझता था मेरी बहुत अच्छी है। हाँ। इसमें जाने से पहले मैं एक बैकग्राउंड इसका देता हूँ। मैं हम्म। पूरी हिंदी मीडियम में पढ़ा, पहली से लेकर 12वीं तक। इंग्लिश ओके। तक हमने हिंदी में पढ़ी। यानी कि इंग्लिश को हिंदी में कैसे पढ़ते हैं कि आपका जो नरेशन है वो हिंदी में है, इसको ट्रांसलेट करिए और फिर उसको दैट्स ट्रू। लिखिए और फिर उसको बोलिए। बोलने का तो कोई उसमें था ही नहीं ना, तो उसका जो हम्म। पेडागोजी थी उसके अंदर ऐसा था कि आप इंग्लिश में ही बोलिए, और पैसेजेस होते थे उसका जवाब देना होता था। लेकिन अधिकतर टाइम आप हिंदी में सोचते थे और इंग्लिश में ट्रांसलेट करके फिर दैट्स ट्रू। लिखते थे। हम्म। तो ये एक प्रोसेस था। लेकिन और बोलने की कभी जरूरत नहीं पड़ी। हाँ। ग्रामर अच्छी हाँ। थी मेरी और वोकेबलरी रीजनेबल थी। लेकिन जब वहां हम्म। कॉलेज में गया तो मुझे एहसास हुआ कि बोलना बहुत जरूरी है। और वो पहला पॉइंट था जब मुझे एहसास हुआ कि नहीं, कम्युनिकेशन स्किल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और वन ऑफ द मोस्ट तो उस टाइम नहीं एहसास हुआ, वो अब एहसास हुआ। लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर अस। इंटरव्यू में तो बैठेंगे तो सर। पड़ेगी, हम्म। हम्म। क्लासेस सारा स्टडी मटेरियल है वो इंग्लिश में है, वो पढ़ने के लिए जरूरत पड़ेगी। तो वहां से मुझे एहसास हुआ कि इंग्लिश पे और ध्यान देना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान देना चाहिए। तो सर, इज देयर एनी सच इंसिडेंट दैट यू रिमेम्बर दैट मेड यू फील कि आपको अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी चाहिए? कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको याद है जिसकी वजह से रियलाइज हुआ आपको? हमारे वहाँ एक प्रोफेसर थे जो इंग्लिश की क्लास लेते थे, जीडी की लेते थे क्लास, हम्म। प्रोफेसर चक्रवर्ती। और उस क्लास में जब सब अपना प्रेजेंटेशन देते थे या वो देते थे, तो मेरी ग्रामर तो ठीक थी, लेकिन जब मैं प्रेजेंटेशन देता था तो मुझे थोड़ा हल्का सा डर भी लगता था, और मुझे लगता था कि मैं जब बोल रहा हूं तो मैं बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक करता हूं, और मेरे जो हम्म। मार्क्स आते थे वो एवरेज ही आते थे, एवरेज से कम आते थे। जबकि इससे हम्म। पहले हमेशा मैं टॉपर रहा, हमेशा मैं अच्छे मार्क्स लाता था इंग्लिश में, और इंग्लिश मेरा अच्छा सब्जेक्ट था। लेकिन जब वहां गया तो मैं एवरेज और बिलो एवरेज चला गया, तो मुझे एहसास हुआ कि नहीं, अब मैं फिर एक अलग कंपटीशन में फिल्टर होता जा रहा है। शहर में आया तो बड़ा हम्म। कंपटीशन मिला, और जब वहां गया तो और देश भर से निखरे हुए लोग आए हुए थे। तो और मुझे लगा कि मैं और नीचे चला गया हूँ। जैसे शहर में आया था हाँ। फर्स्ट से तीसरी चौथी रैंक पे चला गया, तो यहाँ मैं काफी नीचे चला गया। तो मुझे एहसास हुआ कि नहीं, ये ओके। मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे, इंग्लिश पे, उस समय इंग्लिश पे ध्यान देने की हम्म। आवश्यकता है। और मैंने फिर कुछ प्रयास की। तो सर, आपने किस तरीके की टिप्स को फॉलो किया? क्योंकि अगर हम इस टाइम की बात करें तो बहुत सारे सोर्सेस अवेलेबल हैं, पर जब अगर आपके टाइम की बात करें तो उस टाइम पर आपने क्या टिप्स को फॉलो किया? क्या आपने कोई ट्यूशन ज्वाइन किया? मतलब किस तरीके से आपने अपनी इंग्लिश को उस टाइम पर इम्प्रूव किया? नहीं, ट्यूशन तो मैंने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन मैंने हम्म। कुछ रिकमेंडेशंस प्रोफेसर्स लोगों ने भी दिए, और बाकी पीयर्स जो हमारे फ्रेंड्स थे वो लोग भी करते थे। तो मैंने न्यूज़पेपर शुरू किया, टाइम्स ऑफ ओके, इंडिया और न्यूज़पेपर। द हिंदू। सो मैंने द हिंदू को पिक किया और हम्म। उसको बहुत थॉरोली पढ़ना शुरू किया। इनफैक्ट एक समर में तो मैंने सिर्फ यही काम किया कि उसको 3-4 घंटे तक लगातार मैं उसको पेपर को पढ़ते रहता था और अंडरलाइन ही करता रहता था, तो शब्द समझ में नहीं आते थे। तो हम्म। ऐसा होता था कि पूरे आर्टिकल में 300 शब्द हैं तो लगभग 250 शब्द मेरे अंडरलाइन हो जाते थे। यानी कि इतने शब्द थे बहुत। जो पता ही नहीं थे। तो वो उसको मैंने पिक किया वोकेबुलरी बढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अपना ग्रामर इंप्रूव करने के लिए। तो दो एस्पेक्ट वहां, तो फिर मैंने एक कॉपी बनाई अपनी। तो उसमें जो भी हम्म। वर्ड आता था ए टू जेड तक मैंने सेपरेट कर दिए उसमें, मार्कर्स लगा के। और जो ए से आता था उसको ए से लिख दिया, बी पे आता था वो बी से लिख दिया, और फिर उसका बाद में वापस डिक्शनरी खोल के मीनिंग लिखता था और उसको वापस उसमें सेकंड टाइम रिवाइज करता था। ऐसे करके मैंने हम्म। अपनी वोकैबुलरी और ग्रामर पे थोड़ा होल्ड और बढ़ाया, रिटर्न कम्युनिकेशंस हम्म। पे होल्ड बढ़ाया। हम्म। और वहां पर जो क्लासेस होती थी उसमें प्रेजेंटेशंस देना पड़ते थे, तो वहां थोड़ी इंग्लिश इंप्रूव करने का मौका मिला।
दैट्स रियली अ वंडरफुल थिंग। तो ओ सर, इसके अलावा आपने और भी कोई चीज, और भी कोई टिप है जो फॉलो की अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए? तो जैसे जैसे आप देख रहे हो, मैं गांव में था, द बेस्ट था, फिर शहर में आया तो थोड़ा तीसरे चौथे नंबर पे चला गया, और हम्म। कॉलेज में गया तो और नीचे चला गया। इसके बाद मेरा चैलेंज शुरू हुआ, वास्तविक चैलेंज शुरू हुआ जब मैं जॉब में गया।